आदमी पार्टी माननीय मनीष सिसोदिया जी, मंचस्थ उपस्थित जिला प्रमुख सहित तमाम टीम, भाईओ और बहनों, मित्रों, आज मां उमियाना प्रांगण में आपणे सौ मळी रह्या छीए। खूब उम्मीद साथे एक परिवर्तन करवा माटे आपणे मथी रह्या छीए, पण दरेक वखते थाय छे एवुं न थाय एना माटे मारे आपने विनंती करवी छे। माहौल बने लागे के चूंटणी जीती जशुं अने पछी ज्यारे मतदान करवानो दिवस आवे त्यारे घरमां ऊंघी रहीए, એટલે ગરબો ઘરે આવે। મારે આપને વિનંતી કરવી છે, ખૂબ આશાઓ છે। અત્યારે જ હું આવ્યો અને લગભગ બધી રજૂઆતો આવી છે। આશા ફેસિલિટેટર બહેનોની રજૂઆતો છે, પીએસએલ પલ્સ કંપનીની રજૂઆતો છે, ખૂબ બધી રજૂઆતો આવી છે, હું લઈશ। પરંતુ એ પહેલા मारे आपनी समक्ष केटलीक बात मूकवी छे। मित्रों, शुं काम आम आदमी पार्टी आपणे पसंद करी छे? शुं काम आम आदमी ने मत आपवा माटे लोकोने समजाववुं पड़े? शुं काम आम आदमी जरूरी छे? अने शुं काम आ छेल्ली ट्रेन छे, छेल्ली बस छे? 2022 जो भूलथी आपणे चूकी गया तो मित्रों तमने खबर नहीं, गुजरात पोणो वेचाई जवानो छे अने मने एनो सखत डर छे। मित्रों, आजे 70 वर्ष थया, 75 वर्ष थया आजादी ने। घणी पार्टीओ आवी, भाजप आवी, कांग्रेस आवी, पण आपड़ा प्रश्नो ठेर ने ठेर रह्या। आ बात साची छे? 75 वर्ष में कोईनु उद्धार थयुं नथी थयुं, पण हूँ कहीश के थयुं केनु? केटलाक नेताओ। आ हूँ साचुं बोलुं छुं? मित्रों, आज वात 75 वर्ष थया आपणी पासे सारी स्कूल न बनी शकी, 75 वर्ष में आपणी पासे दवाखानु न बनी शक्युं, 75 वर्ष में आपणे खेडूतोनो पाक लई न शक्या घरेथी, 75 वर्ष थया खेडूतोने भाव न आपी शक्या, 75 वर्ष थया आपणे खेडूतोने पाणी न आपी शक्या, 75 वर्ष थया खेडूतोने वीजળી નથી આપી શક્યા, 75 वर्ष थया આપણે કર્મચારીઓને કાઈ ન આપી શક્યા। અને પરિસ્થિતિ મિત્રો એ આવી કે ગરીબ વધારે ગરીબ બન્યો અને અમીર વધારે અમીર બન્યો। પણ હવે તમારી જવાબદારી છે। पहला जारे जारे आपड़ा राज ऊपर अंग्रेजो होय, मुगलो होय, फिरंगीओ होय, अढळक प्रकारना शासकोए राज कर्યું त्यारे तमारा ने मारा जेवा सैनिकोए माथा आपेला छे। आजे मारे तमने एक विनंती करवी छे के हवे समय बदलायो छे, हवे समय छे मतदाननो, समय छे चूंटણીનો। હવે માથા આપવા નથી પડતા, પણ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને ઘરે ઘરે લોકોને સમજાવીને મતદાન કરાવવાનો છે ને તમારી જવાબદારી છે। મિત્રો, માન લો કે કોઈ પક્ષ એમ કહેતો હોય કે હું ભાજપમાં છું, તો એના ઘરે જાજો તમે। ભાજપના કાર્યકર્તાના ઘરે જઈ અને એમના પત્નીને, એમના બહેનને, એમને માતાને મળજો અને એને ગેરંટી કાર્ડ આપજો। ગેરંટી કાર્ડ છે ને આપણું? હમણાં હું જામનગર ગયો ત્યારે ગેરંટી કાર્ડ વેચતા હતા, એટલે એમાં એક ભાજપના ઘરે અમે ગયા, કાર્યકર્તાના ઘરે। ભાજપના કાર્યકર્તા, નાના ઈશુદાનભાઈ હું તો ભાજપમાં છું। બેન રસોડામાંથી બહાર આવીને કીધું કે ઈશુદાનભાઈ અહીંયા આવો, ગેરંટી કાર્ડ અમને આપો। કે આ ટંબુડા મારા પતિને ખબર નથી
વીજળી બિલ મારે ભરવું પડે છે, મને તકલીફ પડે છે. તો મિત્રો તમારે ઘરે ઘરે જઈને કહેવાનું છે કે ભાજપને મત આપશો તો તમને મળવાનું નથી, સી.આર. પાટીલને મુખ્યમંત્રી પદ મળવાનો છે, બિન ગુજરાતીને. એ ક્યારેય ગુજરાતી સ્વીકારી ન શકે. મિત્રો માની લો કે ભાજપને મત આપશો તો સી.આર. પાટીલને વીજળી ફ્રી મળે છે એ ચાલુ રહેશે, બંગલો ફ્રી મળે છે એ ચાલુ રહેશે, બંગલો ને હેલિકોપ્ટર બધું બહુ ફેરવે છે. પણ ભાજપના કાર્યકર્તાને કે પેજ પ્રમુખને, કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાને કે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાને કાંઈ મળવાનું નથી. પરંતુ જો આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર લાવો તો 1 માર્ચથી જયારે ઘરે ઘરે જાઓ ને એને કહેવાનું કે 1 માર્ચથી તમારો વીજળી બિલ 0 ના આવે તો મારી પાસેથી લઈ જજો, આમ આદમી પાર્ટીનો સૈનિક છું. આ 2000 મહિને એટલે કે 4300 સુધીનો વીજળી યુનિટ જેનો પણ આવતો હશે ને એ 1 માર્ચથી જો આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર આવી તો ફ્રી થવાનો છે, બાકી નથી થવાનો, બાકી વધવાનો છે. તો આના માટે મહેનત કરવી પડે કે ન કરવી પડે, અને જીત જાનથી કરવી પડે કે ન કરવી પડે. હવે આપણે કઈ રીતે મહેનત કરવી? તમે તો એમ કહો છો કિશુદાનભાઈ અમે તો મત આપવાના, પણ એટલાથી નહીં થાય. આપણો જમાઈ હોય, સાસુમાં હોય, દેર હોય, જેઠ હોય, મામો હોય, કાકો હોય, પેલે એને પકડવાના. ભાજપમાં મામો હોય તો એને હાથ જોડીને કહેવાનું કે મામા કંસ બનો, એ પેલા સુધરી જાઓ. તમારા કારણે આજે મારે 3000 નો ડબ્બો ખાવો પડે છે તેલનો. મામા તમે ભાજપમાં રહેશો અને મત આપશો તો તમને વાંધો નહીં આવે, પણ મારે 5000 નો ડબ્બો મારે નથી ખાવો, એટલા માટે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાઈ જાઓ, નહીં તો બંધ કરો તમારે નાટક. આ કેવું પડશે. આજે ઘણા બધા બહેનો આવ્યા છે, આશા ફેસિલિટેટર બહેનો છે, મને ખબર છે એમની ચિંતા, પણ એ બહેનોને મારે કેવું છે કે ઘરે ઘરે તમે જાઓ છો તો તમારે ઘરે ઘરે જઈને કેવું પડશે કે આમ આદમીની એટલે કે આશા ફેસિલિટેટર બહેનોની સરકાર બનાવો તો તમારો પગાર વધશે. આજે મને ખબર છે ખૂબ ઓછો પગાર છે, ભાડું પણ મળતું નથી, પૂરતો પગાર મળતો નથી. આશા વર્કર બહેનો હોય, આંગણવાડીની બહેનો હોય, સફાઈ કર્મી હોય, પટાવાળા હોય, નાના નાના જેટલા પણ કર્મચારીઓ હોય, આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર આવતાની સાથે 6 જ મહિનામાં એટલે આવતો ચોમાસું તમારું દિવાળીથી સારું હશે એની ગેરંટી આપીએ છીએ. આ બહેનો હાથ ઊંચો કરો તો આશા વર્કર બહેનો બને તો તમે તાળીઓ તો પાડો. તમારા માટે હું કહું છું ઘરે ઘરે જાશો કે નહીં જાઓ, તમારી જવાબદારી. જો સરકાર નહીં બને તો મનીષજીને કઈ ફરક નહીં પડે, ઈશુદાન ગઢવીને કઈ ફરક નહીં પડે, અરવિંદ કેજરીવાલજીની ફરક નહીં પડે, પણ મિત્રો જો આ છેલ્લી ટ્રેન છે સરકાર નહીં બનીને તો તમારા લોકોના આ લોકો લોહી ચૂસી લેશે, એટલી મને ખબર છે. તમારે તમારા માટે સરકાર બનાવવાની છે. પીએસસીએલ કંપનીના જે ભોગ બનેલા મિત્રો છે મારી પાસે આવ્યા હતા, મને ખબર છે લાખો રૂપિયા એના ડૂબી ગયા છે. મેં વિડીયો પણ બનાવ્યો હતો, કરોડો રૂપિયા છે, મને ખબર છે, મેં વિડીયો પણ બનાવ્યો છું. હું તમામ પીએસસીએલ એટલે પલ્સ કંપનીમાં જેટલા પણ નાણાં રોકાયેલા છે એ તમામ નાગરિકોને વિનંતી કરું છું કે છેલ્લી ટ્રેન છે, તમારે તમારા રૂપિયા પાછા મેળવવા હોય તો આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનાવો, રૂપિયા પાછા અપાવવાની જવાબદારી અમારી છે. મિત્રો અહીંયા સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પેપર ફૂટે છે, એનો પણ મારી પાસે આવ્યું છે કે સુદાનભાઈ બેરોજગાર યુવાને પત્ર લખ્યો છે કે પેપર ફૂટે છે. આપણા સન્માનીય મનીષ સિસોદિયાજી બેઠા છે અને આ ભાજપના ડબડિયાઓને ખબર નથી
મનીષ સિસોદિયાજીને ફોડવા ગયા હતા, એને એમ કે આ શિંદેની જેમ ફૂટી જાય. પેલા મહારાષ્ટ્ર વાળા શિંદે કે ઓપરેશન લોટેસ આપો, રૂપિયા આપો. એમને ખબર નથી અકબરના દરબારમાં જયારે બધાને કીધું ને ત્યારે મહારાણા પ્રતાપે તે કીધું હતું કે અકબર તારા બાપની તાકાત નથી, મેવાડમાં હું બેઠો છું ત્યાંથી પગ ન પડું. ઈ મહારાણા પ્રતાપના વંશજ અસલ સિસોદિયાને જયારે ફોડવા ગયા હતા ને એને કીધું કે હે મોદી તારી તાકાત નથી, હું વંશજ છું મહારાણા પ્રતાપ. અને મિત્રો એમણે સરકાર બનાવી, બીજા જ દિવસે પરીક્ષા હતી. હજી તો સરકાર બની હતી, બીજા દિવસે પરીક્ષા હતી. સિલસિલો જેમ ગુજરાતમાં પેપર ફૂટવાનો હતો એવો જ પેપર ફૂટવાનો સિલસિલો ત્યાં થયો. એક પેપર ફૂટ્યો, એવી સજા કરી કે આજે 7 વર્ષમાં દિલ્હીમાં તમામ પ્રકારની પરીક્ષાઓ લેવાની કોઈના બાપની તાકાત નથી, એક પેપર ફોડી શકે. મિત્રો હું તમામ બેરોજગાર યુવાનોને કહું છું, બધી વસ્તુ ભૂલી જજો. ભાજપ ભૂલી જજો, કોંગ્રેસ ભૂલી જજો. જો તમારે નોકરી જોતી હોય, મને ખબર છે નોકરી મળશે તો છોકરી મળશે, મને બધી પીડાની ખબર છે. જો તમારે નોકરી મેળવવી હોય અને ઈ પણ લાગવગ રહિત અને ઈ પણ પેપર ફૂટ્યા વગર, તો આમને એકને જ હિન્દુસ્તાનમાં આવડે છે સાહેબ, બીજા કોઈ નથી આવડતું. પેપર નહીં ફૂટવા દઈએ, એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. મિત્રો આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર શું કામ? આજે મોંઘવારી આસમાને છે, નડે છે કે નથી નડતી? નડે છે કે નથી નડતી? તમે વિચાર કરજો. હવે મોંઘવારી તો કેન્દ્રની ભાજપ સરકાર વધારે છે, એમાં તો આપણે કઈ કરી ન હોકી, પણ રાહત તો આપી શકીએ કે ન આપી શકીએ? આમ આદમીની સરકાર બને, 1 માર્ચથી તમારા તમામ પ્રકારના વીજ બિલ માફ, એટલે એ સરકારમાં ફાયદો થયો. બીજું, તમામ પરીક્ષાઓ 1 વર્ષની અંદર 2 લાખ જેટલી સરકારી નોકરીઓની પરીક્ષાઓ લેવાશે ને એ પેપર ફૂટ્યા વગર. ત્રીજું, જો ફાયદા કોને કહેવાય? તમામ ગામડામાં સારામાં સારી સ્કૂલ 2 સબ્જેક્ટની, જેને ગુજરાતીમાં ભણાવવું હોય ગુજરાતીમાં ભણાવે, જેને ઇંગ્લિશમાં ભણાવવું હોય ઇંગ્લિશમાં ભણાવે, એ પૂરી કરવાની જવાબદારી આપણી છે. મિત્રો તમારો બાળક 4થા ધોરણમાં ભણતો હોય ને ઇંગ્લિશમાં વાત કરે તો એક ખેડૂતના અને એક મજદૂરના બાપ એ મજદૂરો એને ગર્વ થાય કે ન થાય? થાય કે ન થાય? એના માટે 70 વર્ષમાં આ લોકોએ કર્યું તો એક મોકો મળવો જોઈએ કે ના મળવો જોઈએ? બીજું કે અત્યારે માની લો કે ગુજરાતમાં ક્યાંક આપણે અકસ્માત થાય, ન કરે નારાયણ, અકસ્માત તો પૂછીને આવતું નથી. અહીંયા અકસ્માત થાય, ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવે અને 10-15 દિવસ રાખવામાં આવે અને 15 થી 20 લાખનું બિલ આવે, તો પત્નીના ઘરેણા વેચવા પડે કે ન વેચવા પડે? જો તમને ને મને અકસ્માત થાય ને સરકાર સહાય ન આપી શકતી હોય તો એ સરકારને બેસાડવાની શું કામ? એને કાઢવી પડે કે ન કાઢવી પડે? આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનતાની સાથે ગુજરાતમાં કોઈનો પણ અકસ્માત થાય, કોઈ પણ હોસ્પિટલમાં વયા જાઓ, 1 લાખનું બિલ આવે, 1 કરોડનું બિલ આવે, આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર ભોગવશે, તમારે ભોગવવાની જરૂર નથી. દરેક ગામમાં સારામાં સારું દવાખાનું હશે, દરેક ગામમાં, અને તમામ પ્રકારના ટેસ્ટ ફ્રી હશે. શું કામ આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનાવવાની છે એની હું વાત કરી રહ્યો છું. પછી ખેડૂતો, આજે વિચાર કરો, 75 વર્ષ થયા આઝાદીના, ખેડૂતોને ભાવ કોઈ આપે છે? આપે છે? નથી આપતા ને. મને ભાજપ પર એવું કહેતા કે સુદાનભાઈ ખેડૂતોને ભાવ આપવાની જરૂર નથી. મેં કીધું કેમ? મને કે ભાવ ન આપીએ ને એટલે અમને મત આપે, ખોબલે ને ખોબલે હરક પદુડા થઈને મત આપે. ઈ કે જુઓ તમે બનાસકાંઠા હોય, સાબરકાંઠા હોય, ઉત્તર ગુજરાત હોય, બધામાં ખેડૂતોને જેટલા અમે લૂંટ્યા, જેટલો ખાતરનો ભાવ વધારી એટલા મત વધારે આપે. હવે જાગી જવાની જરૂર છે કે નથી? કેવાય ને? હા, એમ પાછા કેતા રહેજો.
મધ્યાહન ભોજન યોજનાના કર્મચારીઓની માંગણી છે કે માસિક ફક્ત 1600 રૂપિયા જ આપવામાં આવશે, મદદનીશને 1400 રૂપિયા. ચિંતા ન કરો, તમારું પગાર 3 ગણો કરી દેવામાં આવશે. મધ્યાહન ભોજન યોજનાના કર્મચારીઓનો પગાર 3 ગણો કરી દેવામાં આવશે, જેથી તમે પણ સારું ખોરાક બાળકોને આપી શકો. મિત્રો, આ બધી વાત ગેરંટીઓની થઈ, પણ મને ભાજપ વાળા એવું કહેતા હતા, મને કે સુદાનભાઈ, અમે જેટલા ભાવ વધારીએ એટલા મત અમને પડે છે. આમાં આપણે મૂર્ખ સાબિત થઈએ છીએ. કોઈ ભાજપ વાળો, કોંગ્રેસ વાળો તમારા આજુબાજુ હોય ને તો એને કહેજો કે હવે બુદ્ધિ વાપર. એમણે મને કીધું કે બહેનો, 350 રૂપિયા ગેસના સિલિન્ડરના હતા, ત્યારે બહેનો ને અમે કહ્યું હતું કે અમે આવીશું તો અચ્છે દિન લાવીશું. અત્યારે 1150 છે, તોય બહેનો અમને મત આપે છે. ગેસના સિલિન્ડરના 1150 છે તો અમને મત આપે છે. મેં કીધું હવે શું કરશો? મને કે હવે વધારે અચ્છે દિન લાવીશું. હવે 2022માં ભાજપની સરકાર બને એટલે ગેસના 1800 રૂપિયા કરવાનું ભાજપે નક્કી કર્યું. બોલો રામચંદ્ર દેવ કી. 1800 રૂપિયા. અને પછી ઘણા બિચારા બાઇક લઈને જતા હોય છે. ભાજપ વાળા મને કે બાઇક લઈને બધા ફરે છે ને, આમને આટા ફેરા કરે છે ને. મને કે અમે હવે 22માં આવીને એટલે કોઈ નીકળશે નહીં. મેં કીધું શું કામ? મેં કે અમે નક્કી કર્યું છે, હવે સરકાર આવે એટલે 150 રૂપિયા પેટ્રોલ ને ડીઝલ ના કરવાના છે. એટલે મારી આપને સૌને વિનંતી છે કે આપણી છાલ તો ઉખડી ગઈ છે, હવે ચામડી ઉખડે એ પેલા ચેતી જવાની જરૂર છે. અને એના માટે મારે એક વચન જોઈએ. આ તો મેં વચન બધા આપ્યા, હવે લગભગ કોઈ બાકી નથી રહેતું. હોય તો કોઈ ચિંતા કરતા નહીં. આ જમીન નથી મળતી સાંતણીની, ઈ કરી લેશું. મારે તમારી પાસે એક વચન જોઈએ છે, અને વચન મજબૂતાઈથી આપજો. મેં કીધું ને કે જીગરથી હંમેશા જિંદગીમાં રહેવાનું. જો જિંદગી જીવવાની 2 ટેવ છે, 2 રીત છે. કાં તો જેટલા અન્યાય થતો હોય, લૂંટ ચાલતી હોય, એ સહન કરતા રહ્યો, અને કાં મેદાનમાં ઉતરીને સિસ્ટમ સામે અવાજ ઉઠાવીને મર્દાનગીથી જિંદગી જીવવા. 2 રીત છે. તમારે કઈ પસંદ કરવી નથી કરવાનું. મારે છેલ્લે એ જ વચન કરવાનું છે કે સરકાર બનાવવાની છે, પણ આમાં તમારો રોલ બહુ મહત્વનો છે. હવે માથા કપાવવા નથી જવાનું. આપણે એક સમય હતો કે આપણે ધર્મની રક્ષા કરવા અને રાજની રક્ષા કરવા માથા કપાવવા જવું પડતું હતું. પણ 100 વ્યક્તિનો જોડી આવ્યો કે ન જોડી આવ્યો, એ તો બહુ અઘરું નથી ને. હવે માની લો તમને વર્ષે 10 લાખ સુધીનો ફાયદો થતો હોય તો 100 વ્યક્તિ જોડવામાં કઈ વાંધો છે? અને એમાં 25-50 ભાજપ કોંગ્રેસના લઈ લેવાના, એટલે નડે નહીં. જો ભાજપને મત આપશો એટલે મોંઘવારીની મારમાં મરશો, અને કોંગ્રેસને મત આપશો એટલે ભાજપમાં વેચાશો. ખબર છે ને? ભાવ બોલે. મને હમણાં ભાજપ વાળા એવું કહેતા હતા કે સુદાનભાઈ અમારી જ સરકાર બનશે. મેં કીધું કેમ? ઈવીએમ માં તો મેં કીધું નહીં થવા દો, એ તો મારી આવડત છે, મને ખબર છે. મને કે તો એવું નહીં, અમે 70 બેઠક અમે લાવવાના છીએ અને 22 કોંગ્રેસની આવે એવું અમે પ્રયાસ કરવાના છીએ. એટલે 22 કોંગ્રેસ વાળા ભાજપમાં લઈ લેવું અને સરકાર બનાવી લેશું. સારું, આ મને ઊંઘ ઉડાડી દીધી. એટલે તમારે ન કોંગ્રેસમાં જાય એક મત કે ન ભાજપમાં જાય, આ સંકલ્પ લેવાનો છે. 100 વ્યક્તિ જોડવાના છે. મને હાથ ઊંચો કરીને વચન આપો, કેટલા 100 વ્યક્તિ જોડશે? બોલો હાલો. કેમેરા વાળા ફેરવજો એટલે મને ખબર પડે. પાકું વચન આપો છો? 100 જોડશો? બોલો ભારત માતા કી. ખૂબ ખૂબ આભાર ઈશુદાન ગઢવીજી. આપણે એક વાત ચોક્કસ કહું કે આ જે તલોદ તાલુકો છે એ પરિવર્તનનો પહેલું એપિસેન્ટર રહેલું છે. જયારે બી પરિવર્તન આવે તો તલોદ તાલુકો પહેલો એક્સેપ્ટ કરે છે. સાચું ને મિત્રો? પરિવર્તન ઈચ્છો છો તમે? ઈશુદાનભાઈને આપણે ગેરંટી આપીએ છીએ કે અમે પરિવર્તન કરીને ચંપીશું.
दिल्ली के डेप्यूटी सीएम माननीय मनीष सिसोदिया जी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि स्टेज पर आए और अपनी जो बात है ये रखिए। तलोद की जनता परिवर्तन इच्छती है। आम आदमी पार्टी का जोरदार तालियों का स्वागत। ईशुदान भारत माता की वंदे वंदे। तलोद के इस मैदान में उपस्थित भाई और बहनों, मंच पर उपस्थित गुजरात के युवा नेता, लोकप्रिय नेता और गुजरात के घर घर में टीवी एंकरिंग के जरिए अपनी पहचान बना चुके भाई ईशुदान गढ़वी जी, मंच पर उपस्थित हमारे खेड़ा ब्रह्मा के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट और अरविंद केजरीवाल जी के मजबूत सिपाही विपिन चंद्र भाई जी, जिला प्रधान रमेश सलाट जी, यहां पर उपस्थित सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, तलोद के जनता, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का कि आप सब लोग यहां इस सभा में आए। मैं ईशुदान भाई की तरह से शानदार गुजराती में आपसे बात नहीं कर सकता, ये मेरी गरीबी है। मैं गरीब हूं, इस गरीबी के लिए मुझको माफ कीजिएगा। मैं हिंदी में सोचता हूं, हिंदी में बात रखूंगा, चलेगा? ये आपकी अमीरी है कि आप गुजराती और हिंदी दोनों समझते हो। मैं तो दिल्ली से आया हूं। अरविंद केजरीवाल ईशुदान जी की तरह पत्रकार था एक टीवी चैनल में। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ये पत्रकारिता तो सब लोग करते रहेंगे, आओ आंदोलन करते हैं। आंदोलन में आ गए। जनता ने कहा कि आंदोलन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब आंदोलन करके इन नेताओं को जाके कहते हैं अच्छे स्कूल बनवाओ, अच्छे अस्पताल बनवाओ, तो ये नेता कहते हैं अगर अच्छे स्कूल और अस्पताल चाहिए तो अपने आप नेता बन जाओ, ऐसे थोड़ी नेता बनते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी बोले चलो नेता बन जाते हैं। और आज हमारा नेता बनना या ना बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां जितने आम आदमी पार्टी के लोग खड़े हैं, इनका है नेता बनना, एमएलए बनना, मिनिस्टर बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि तलोद का सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताओ। तलोद का सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल से अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताओ। हमने दिल्ली में यही किया है। दिल्ली में 30% लोग अमीर लोग रहते हैं और 70% लोग झुग्गियों में रहते हैं। अनऑथराइज कच्ची कॉलोनी बोलते हैं वहां पे उनको, उसमें रहते हैं। ये अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाली जनता, गुजरात से भी जाते हैं लोग, बिहार से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, अलग अलग जगह से जाते हैं। वहां जो झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि महंगे महंगे प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा लें, महंगे महंगे प्राइवेट अस्पतालों में अपने लोगों का इलाज करा लें। तो सरकारी स्कूल वहां भी बर्बाद कर रखे थे। जनता ने फैसला दिया 2015 में, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने मुझको एक बात कही। मैं शिक्षा मंत्री हूं, वहां का फाइनेंस मिनिस्टर हूं। उन्होंने मुझको एक चीज बोली। मैंने उनसे पूछा सर डायरेक्शन क्या है आपकी, निर्देश क्या है अपने मंत्री को? बोले अगर स्कूल बनवाने में और पुल बनवाने में अगर पैसा कम हो और स्कूल बनवाने में और पुल बनवाने में चुनाव करना हो कि एक बनवाना है तो स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ लिख गए तो पुल तो अपने आप बनवा लेंगे। ये राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने दी है इस देश को। उस राजनीति पे काम करते हुए पिछले 7 साल में दिल्ली में इतने काम हुए कि 2020 में
जब दिल्ली का दूसरा चुनाव हुआ अरविंद केजरीवाल जी के लिए, तो अरविंद केजरीवाल जी देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने जनता के बीच जाके कहा कि भाइयों बहनों, अगर मैंने काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना, वापस भेज देना। आज तक कोई नेता नहीं कहता ऐसा। अभी चुनाव आ रहे हैं, यहां के मंत्री जी हैं, है ना, यहां तो मंत्री जी का घर है पास में ही, अभी वोट मांगने आएंगे थोड़े दिन पहले बाद में, उनसे पूछ लेना कि मंत्री जी क्या इस बार ये फॉर्मूला लगा दें कि काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो मत देना। मंच पे खड़े होकर मंत्री जी से एक बार कहलवा देना। भाजपा के मंत्री में किसी में हिम्मत नहीं है जो मंच पे खड़े होकर एक बार भी गलती से बोल सके कि काम किया हो तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना। ये अरविंद केजरीवाल जी ने एक मंच पे नहीं, 2020 में हजारों मंच पे ये बात कही और दिल्ली की जनता ने कहा केजरीवाल ने काम किए हैं, इसलिए केजरीवाल को दोबारा लेके आएंगे। क्या किया केजरीवाल जी ने? केजरीवाल जी ने स्कूल इतने शानदार कर दिए कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों जैसे हो गए। वही शानदार बिल्डिंग, वही शानदार पढ़ाई, और बल्कि पढ़ाई तो ऐसी हो गई कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों के बच्चों को कोटा में जाके कोचिंग लेनी पड़ती है आईआईटी और मेडिकल में जाने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक इस बार अभी थोड़े दिन पहले मैं मिला, 8 दिन पहले ही, चप्पल की फैक्ट्री में, हवाई चप्पल बनाने की फैक्ट्री में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर का बेटा अरविंद केजरीवाल जी की वजह से पढ़ के आज आईआईटी में गया है। प्रेस करने वाले का बेटा, दिल्ली में प्रेस करने वाले होते हैं, प्रेस करने वाले का बेटा मुंबई की आईआईटी में एरोनॉटिक, हवाई जहाज बनाने वाली एक इंजीनियरिंग होती है, मैं मोटे तौर पे बता रहा हूं, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग कर रहा है आईआईटी मुंबई से। जिस बच्चे के मां बाप 10 साल पहले मर गए, उसका भाई दिल्ली में उसको 8,000 रुपए की दिहाड़ी पे काम करके उसने अपने छोटे भाई को पढ़ाया। आज वो लड़का एम्स में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। जब डॉक्टर बन के निकलेगा कम से कम 2 से 4 लाख रुपए महीने कमाया करेगा। ये अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया। सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, ये केजरीवाल जी ने करके दिखाया। केजरीवाल जी ने करके दिखाया कि सरकारी अस्पताल इतने शानदार हो गए कि प्राइवेट जैसे हो गए, और मोहल्ला क्लिनिक बना दिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, ताकि हर मोहल्ले में लोगों को अपने छोटे छोटे इलाज कराने के लिए इधर उधर न भागना पड़े। और वहां पे एमबीबीएस डॉक्टर बैठता है, सारी दवाइयां फ्री मिलती हैं, सारे टेस्ट फ्री होते हैं। आज मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बन गए और पूरी दिल्ली के लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, अमीर से अमीर कॉलोनियों में फायदा उठा रहे हैं। ये तो चलो स्कूल अस्पताल की बात हो गई। दिल्ली में 2015 में जब हमारी सरकार आई थी तो बिजली आती थी 4 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे। दिल्ली में जनरेटर, इन्वर्टर खूब बिकते थे, लेकिन 2 साल केजरीवाल जी इंजीनियर हैं, 2 साल मेहनत की दिमाग लगा लगा के आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और बिजली 0 बिल आते हैं बिजली के। वहां पे अरविंद केजरीवाल जी से कुछ महिलाओं ने कहा कि भैया हम काम पे जाते हैं, कोई घरों में काम करती है, कोई दफ्तर में काम करती है, कोई दुकान में मार्केट में काम करती है, हमको बस का किराया बहुत देना पड़ता है। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं बहनों के लिए पूरी दिल्ली में बस हमेशा के लिए फ्री कर देता हूं। सारी दिल्ली में बसों में महिलाएं कहीं भी जाएं, ऐसी ऐसी महिलाएं जो कहीं नहीं जाती नौकरी वोकरी करने, वो भी अपनी 4 सहेलियों के साथ, बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं कहती हैं चलो संडे को दिल्ली का फलाना मंदिर देख के आते हैं, चलो दिल्ली का बिरला मंदिर देख के आते हैं, चलो इस बार कालका जी का मंदिर देख के आते हैं। संडे के संडे मंदिर देखने के लिए निकलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि फ्री, नहीं तो 50-100 रुपए खर्च हो जाते थे टिकट पे। ये सारे काम किए और आज दिल्ली में कोई आदमी बीमार पड़े तो या तो उसका शानदार इलाज सरकारी अस्पताल में होता है, लेकिन केजरीवाल जी ने देश में पहली ऐसी शानदार स्कीम बनाई है कि अगर सरकार किसी आदमी का प्राइवेट अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज ना करवा पा रही हो, मतलब कोई आदमी जाए, उसका ऑपरेशन होना है, उसका कोई टेस्ट होना है, वहां पे बोलेंगे 30 दिन बाद आना, 4 महीने बाद आना,
तो अब दिल्ली में किसी को इंतजार नहीं करना पड़ता। सरकारी अस्पताल में जाओ, अगर वहां पे लाइन लंबी है कि 30 दिन बाद आना, किसी भी चीज के लिए आपको कोई डॉक्टर कह रहा है 30 दिन बाद आना, तो अब डॉक्टर ये नहीं कहता 30 दिन बाद आना, बोले यहां तो 30 दिन के लिए लाइन लगी हुई है, आप ऐसा करो आपका इलाज हम प्राइवेट अस्पताल में करवा देते हैं, उसके इलाज का सारा खर्चा सरकार उठाती है। यह केवल दिल्ली में संभव है। आज केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो करके दिखाया, उसको देख के पंजाब के लोगों ने केजरीवाल जी पे भरोसा करके आज वहां सरकार बनाई। 6 महीने के अंदर अंदर पंजाब में भी बिजली के बिल जीरो आने लगे। 51 लाख लोगों के बिजली के बिल जीरो आए। अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक बन गए। शानदार काम होने लगा पंजाब में भी। और इन पंजाब और दिल्ली के काम को देख के गुजरात में भी बदलाव की आहट आ रही है। अब तो बस परिवर्तन चाहिए। गुजरात में भी लोग कह रहे हैं कि अब परिवर्तन चाहिए। 27 साल से देख रहे हैं बीजेपी को हराने के चक्कर में, बीजेपी को हटाने के चक्कर में कांग्रेस के कुछ एमएलए जीत जाते हैं, बाद में बीजेपी की सरकार बनवाते हैं, बीजेपी के काम आते हैं वो। 27 साल से लोग देख रहे हैं। स्कूल नहीं बनवाए इन्होंने, अस्पताल नहीं बनवाए, लेकिन जब केजरीवाल जी ने गुजरात में आना शुरू किया और गुजरात के लोगों ने देखना शुरू किया कि यार अगर दिल्ली में स्कूल हो सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक हो सकते हैं, बिजली फ्री हो सकती है, पंजाब में हो सकते हैं, तो गुजरात में क्यों नहीं हो सकते? यहां तो 27 साल से सरकार चल रही है इन लोगों की। तो पहली बार अमित शाह जी किसी सरकारी स्कूल में पहुंचे अपनी जिंदगी में। आपने कभी देखा? आपने 27 साल हो गए उनको यहां की राजनीति में, कभी देखा अमित शाह जी का कोई फोटो किसी सरकारी स्कूल में? जब गुजरात की जनता कहने लगी हमें केजरीवाल जी जैसे स्कूल चाहिए, इस बार केजरीवाल के साथ चलेंगे, तो अमित शाह जी जाके एक सरकारी स्कूल में फोटो खिंचाने के लिए खड़े हो गए। बोले हमने भी स्कूल बनवाए हैं, ध्यान रखना। नहीं तो स्कूल की बात नहीं करते थे, अस्पतालों की बात नहीं करते थे, बिजली के बिल की बात नहीं करते थे, बल्कि मजाक उड़ाते थे। बोले ये तो केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। केजरीवाल का मजाक उड़ाते थे केजरीवाल जी का कि ये तो फ्री में लुटा रहा है जनता को। केजरीवाल जी ने कहा भाई ये मंत्रियों के घरों में बिजली के लाखों लाखों रुपए के बिल आते हैं फ्री में, आम जनता को फ्री में दे रहा हूं तो क्या फर्क पड़ रहा है? जनता टैक्स दे रही है, फ्री में थोड़ी दे रहा हूं। आदमी नहाने के लिए साबुन की बाटी खरीद के जाता है तो उस पर भी टैक्स लेता है, दे के आता है। घर में चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती, नमक और दूध खरीद के लाता है, उस पर भी टैक्स दे के आता है। ऐसा नहीं है कि फ्री में मांग रहा है आम आदमी। ये देता किस लिए? नमक पे टैक्स है, दूध पे टैक्स है, दही पे टैक्स है, साबुन पे टैक्स है, नहाने से लेके रात को बिजली का स्विच चलाते हो उस पे टैक्स है, बिजली रात को बंद करके सो जाते हो बिजली का बल्ब, लेकिन पंखा चलता रहता है तो टैक्स चलता रहता है सरकार को। ये मत सोचना कभी कि हम सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। यहां बैठा एक एक आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी सरकार को टैक्स दे रहा है, और इसके बदले में अगर सरकार से कह रहा है कि मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल अच्छे दो, तो भीख नहीं मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है। यहां बैठा गरीब से गरीब आदमी टैक्स दे रहा है, और उसके बदले में अगर सरकार से कह रहा है कि मुझे अच्छे अस्पताल दो, तो एहसान नहीं कर रहा है, कर रही है सरकार। हक है उसका, इसीलिए टैक्स दे रहे हैं। ये कहने लगे फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, बोले सरकार को लुटा देंगे। देखो दिल्ली का मॉडल, देखो दिल्ली में आज क्या हो रहा है। जब मैं सरकार में आया था 2015 में 1000 करोड़ का बजट होता था दिल्ली सरकार का। ईमानदारी से सरकार चलाई, और ये कहते ना फ्री की रेवड़ी, केजरीवाल जी ने जम के फ्री की रेवड़ियां बांटी, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल पे, अस्पताल पे। और सरकार का बजट, सरकार को जो टैक्स आता है, बिना टैक्स बढ़ाए सरकार का टैक्स आ गया 70,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ हो गया पिछले साल के। जब आप जनता पे खर्च करते हो तो जनता टैक्स देती है, और जब आप जनता से बचा के अपने दोस्तों पे खर्च करते हो तो वो स्विस बैंकों में ले जाते हैं, वो टैक्स में भी नहीं आते और वो जनता के पास भी नहीं आते। जनता पे पैसा खर्च करो, ये केजरीवाल जी की राजनीति है। दोस्तों पे सरकार का पैसा लुटाओ, ये बीजेपी की राजनीति है। 27 साल से आपने इस राजनीति को झेला है क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं था। मैं आज आपके बीच में यही कहना आया हूं कि इतना ईमानदार नेतृत्व, इतना कर्मठ आदमी अरविंद केजरीवाल जी जैसा, और उनके साथ ईसुदान भाई गढ़वी जैसा आदमी,
जो राजनीति में कैरियर बनाने नहीं आया, बल्कि हमारे और आपके बच्चों के कैरियर बनवाने आया है। इनको ये चिंता नहीं है। मैं अभी इनसे बात कर रहा था, जब बहुत बड़े पत्रकार हैं गुजरात के, आपके घरों में आप सब लोगों ने देखा होगा, आप लोग सोशल मीडिया पे इनके वीडियो भेजते रहे हैं पत्रकारिता के, कि इतना शानदार एंकरिंग करते थे, इतने शानदार पत्रकार थे। ये यहां इसलिए नहीं आए कि नेता बन जाएंगे, 4 लोग गले में माला डाल देंगे, 2 लोग सल्यूट कर लेंगे, ये इसलिए नहीं आए। ये यहां पे इसलिए आए हैं कि इनके दिल में दर्द है कि पत्रकार बनके 27 साल से जिन चीजों को उठाते रहे, आज उनको बदलने का वक्त आ गया है। स्कूल अस्पताल ठीक करने का वक्त आ गया है। नौकरियों के लिए जो लोग रोते देखे हैं, इन्होंने पत्रकार बनके इन्होंने लोगों को रोते देखा है। कई साल तैयारी करती है एक लड़की ग्रेजुएशन करने के बाद, एक लड़का ग्रेजुएशन करने के बाद में कई महीने कई साल तैयारी करती है कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ के, और उसके बाद ये नेता और इनके दलाल मिलके पेपर फूट करवा देते हैं, और उसके बाद कहते हैं हम क्या करें। वो गुस्सा इनको नौकरी से निकाल के लाया है, वो गुस्सा निकाल के लाया है, उसको ठीक करने के लिए राजनीति में आए हैं। आप भरोसा करें, इन्होंने इतनी सारी चीजें कही, केजरीवाल जी पे भरोसा करें, सुदान गढ़वी जी पे भरोसा करें, और अपने आपके कुछ ना कुछ लोग जानकार रहते होंगे दिल्ली में। मैं कह के जा रहा हूं केजरीवाल जी की तरफ से, ये सारे लोग तो पीछे पड़ गए। अब मैं कह के जा रहा हूं, मेरी बात पे भरोसा मत करना, सुदान भाई की बात पे भरोसा मत करना, ये तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, इनकी बात पे भरोसा मत करना। अपने किसी रिश्तेदार को दिल्ली में फोन कर लेना और उससे पूछना कि केजरीवाल जी ने काम किया है कि नहीं किया, तब वोट देना। बीजेपी ने क्या काम किया उसके लिए रिश्तेदार से पूछने की जरूरत नहीं है। अपना घर देख लेना, अपने खेत देख लेना, अपने पशु देख लेना, अपने बच्चों को देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या किया बीजेपी ने आपके लिए। केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए क्या किया है, पंजाब के अब नई सरकार वहां पे पंजाब के लोगों के लिए क्या कर रही है, किसी को एक फोन करके पूछ लेना। अभी जब केजरीवाल जी के ऊपर जनता भरोसा करने लगी है और गुजरात में आज ये आवाज उठने लगी है कि हमें भी केजरीवाल की राजनीति चाहिए, उन्होंने कहा हम स्कूल ठीक करा देंगे, 5 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे स्कूल ठीक कराने में, सारे 5 साल से ज्यादा नहीं लगेंगे अस्पताल ठीक कराने में, और सरकार बनते ही ये पेपर फूटना बंद कर देंगे। इसके लिए तो 5 दिन की भी जरूरत नहीं है, 5 घंटे के अंदर अंदर ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि अगला पेपर ना फूटे। गुजरात के सरकारी कर्मचारी दुखी हैं, पुलिस वाले दुखी हैं, बस वाले दुखी हैं। आज मैं अभी रोड शो निकाल रहा था, वहां पे बस वाले जितने जा रहे थे, सारे बस वाले कह के जा रहे थे हमारे लिए केजरीवाल जी ने कह दिया है हम केजरीवाल जी के साथ हैं। सारे बस वाले कहते हुए जा रहे थे। जहां जाता हूं सरकारी कर्मचारी मिलते हैं, सब कहते हैं कि जी केजरीवाल जी ने हमारी सुनी है। अरे 27 साल से इस राज्य में एक सरकार चल रही है, वो किसी कर्मचारी की सुनने को तैयार नहीं है। जो सरकार अपने सरकारी कर्मचारी की सुनने को तैयार नहीं है, वो आम जनता की क्या सुनेगी। आम जनता की तो उसको चिंता ही नहीं है। तो आज कर्मचारी को सुनने वाली सरकार लाने की जरूरत है। कर्मचारी भी हमारे ही घरों में से किसी में गया बेटा है, वो कोई आसमान से थोड़ी आया है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वहीं से किसी ने पुलिस वाला दिया है, किसी ने बस वाला दिया है, किसी ने सैनिक दिया है, कहीं पे इन्हीं घरों से तो निकल के गए हैं, इन्हीं किसान और मजदूरों के घरों से निकल के गए हैं। उनके लिए भी करने की जरूरत है। आज केजरीवाल जी ने कहा है कि 5 साल के बाद एक भी कर्मचारी को इस तरह की कोई शिकायत नहीं रहेगी जो 27 साल से लोग लड़ रहे हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। तो मैं आपके बीच में इतना ही कहने आया हूं कि इस बार झाड़ू की सरकार, अब की बार झाड़ू की सरकार। बहुत देख लिया 27 साल से बार बार कमल की सरकार। इन्होंने दोस्तों के घर और कमलम बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। कमलम से शानदार स्कूल ना बनवा दे तो कहना क्या किया था। आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाओगे, मैं ये नहीं गारंटी दूंगा इस